Hello students and welcome back again in your geography class. Students, all of you know that this is your online class and through the videos we are just completing our syllabus. Students, now we started the chapter number 21 about the transport and we completed few number of topics that are given like the introduction part of the chapter, after that the means or modes of the transport, then importance of the transport and then the roadways. Now student, today in this video session we are going to just cover the next topic and this topic is relevant with the railways transport. So now through this topic we are going to understand about the railways in our country India. So first the main thing is that now in the introduction part, first we are going to understand about the introduction of railways in our country India, then after that the expansion of the railways, then after that the lines about the railway tracks, the meter gauge, the broad gauge, the narrow gauge, about this, and then after that the important topic, and the important topic is that about the advantages and the disadvantages. Again I am telling you students, the disadvantages and the advantages are very important topics that we are going to cover because most of the questions are taken in your board examinations. So all of you just carefully read the advantages and the disadvantages of these modes of transport. So now first we are going to cover the railways. Now student, look at in the book, the railways constitute the principal mode of transportation for freight and passengers. It brings together people from the farthest corners of the country for conducting business, sightseeing, pilgrimage, education, etc. तो मीन्स अगर हम लोग बेटा रेलवेज की बात करें तो रेलवेज हमारे कंट्री में प्रिंसिपल मोड ट्रांसपोर्ट है. प्रिंसिपल मोड मतलब सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में ये हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है. प्रतिदिन अगर देखें तो इसमें लाखों की तादाद में पैसेंजर्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूवमेंट करते हैं. फ्राइट मतलब गुड्स जो इंडस्ट्रियल यूज के पर्पज से है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है. फिर उसके बाद अगर अदर टॉपिक्स को देखें जैसे साइट सीइंग, आप टूर करने जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, चीजों को देखने जाते हैं, साइट्स को सीइंग करने जाते हैं, उसमें भी रेलवेज बहुत हेल्प करता है. फॉर द एजुकेशन आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं प्रतिदिन वो रेलवे ट्रांसपोर्ट से एक जगह से दूसरे जगह पढ़ने के लिए जाते हैं. पिलग्रिमेज मतलब कि जो श्रद्धालु हैं, जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, वो भी तीर्थ स्थानों पे इन रेलवे की मदद से पहुंचते हैं. तो आपको अब पता चल गया होगा कि ये कितना पर्पसफुल ट्रांसपोर्ट है. नेक्स्ट, इट इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द रेलवे. So now first we are going to cover the history of the railway. Railways were first introduced to India in 1853 when the lines was constructed from the Mumbai to Thane covering a distance of 34 kilometers. Since the Indian railways have grown into a vast network by 1947, the year of India's independence, there were 42 rail system. In 1951, system were nationalized as one unit, become one of the largest networks in the world. Indian railways operate both long distance and the suburban railway system. So now the next topic is a little bit about the history about the railways. So now students, all of you know that the introduction of the railways in year 1853 when the viceroy is the Lord Dalhousie. आपको पता होगा बेटा 1853 में हमारे यहाँ इंडिया में रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया गया था. उस समय हमारे यहाँ वायसराय लॉर्ड डलहौजी थे और ये मुंबई से थाने के बीच में पहली बार चलाई गई थी जिसका डिस्टेंस था 34 किलोमीटर. फिर धीरे धीरे हमारे इंडिया ने इंडिपेंडेंस को अचीव किया. इंडिपेंडेंस को अचीव करने के बाद धीरे धीरे इसका भी एक्सपेंशन हुआ. जब एक्सपेंशन हुआ तो हम लोगों ने देखा कि रेलवेज धीरे धीरे अब ग्रो कर रही थी. हमारे इंडिया के हर एक पार्ट, हर एक कॉर्नर तक वो पहुंच रही थी. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, एट द प्रेजेंट इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द बिजिएस्ट रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, transporting over 18 million passengers and more than 2 million tons of freight daily. It is the world largest employer with the 1.4 million employees. The railways traverse the length and breadth of the country, converging 7,137 stations and the total route length is the 66,030 kilometers.
Many cities have their own suburban networks to cater a customers. फिर देन उसके बाद से अब हम देखते हैं हमारा जो इंडियन रेलवेज है, अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो ये वर्ल्ड में बड़े रेलवेज नेटवर्क्स में आता है, क्योंकि हमारा कंट्री बहुत बड़ा है और लगभग ये हमारे कंट्री के हर एक सिटीज को कवर करने में इस समय ये लगा हुआ है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसमें सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो सबसे ज्यादा लोग इसी डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ काम करते हैं। एंड उसके बाद से अगर स्टेशंस की बात करें तो 7,137 स्टेशंस टोटल इस समय हमारे कंट्री में वर्किंग हैं। अगर टोटल रूट की बात करें तो 66,030 किलोमीटर का रूट ये कवर कर रही है। देन आफ्टर दैट नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रैक सिस्टम। ट्रैक सिस्टम का मतलब बेटा हम रेल की पटरियों की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा इस तरीके से जो रेल की पटरियां होती हैं जिसके ऊपर ट्रेन रन करती है, ये है ब्रॉड गेज। इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज ये देखना है कि इसका ब्रेथ कितना होता है, ये चौड़ी कितनी होती है। तो ये 1.676 मतलब इन दोनों रेल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1.67 मीटर, ये इन दोनों के बीच में होता है। फिर अगर हम लोग बात करें जस्ट वी आर कमिंग ऑन द मीटर गेज, तो नाउ हियर यू सी द मीटर गेज एंड जस्ट मीटर गेज हियर। तो नाउ अबाउट द नैरो गेज, तो दैट इज द 0.762, तो दैट इज कॉल्ड द नैरो गेज मीन्स छोटी लाइन एंड द ब्रॉड गेज मीन्स बड़ी लाइन। नाउ यू सी दैट हियर इज द रेलवे जोन्स। नाउ हियर द 17 डिविजन्स, our country divided into 17 zones for the railway network. So these are the names of the 17 zones that are covering the railways in our country India. So now the next point that we are going to understand, it is about the advantages of railway. अब हम लोग रेलवे के एडवांटेजेस को कवर करते हैं। Railway constitute one of the most efficient and the cost effective forms of the transportation. Railway helps in the easy movement of the bulky goods. Bulky goods means heavy goods and the perishable commodities from to distant places. अगर हम लोग बेटा रेलवेज की बात करें तो ये हमारे लिए बहुत ही इसका एक एडवांटेज है कि इसका किराया होता है बहुत सस्ता होता है। अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस रेलवे के थ्रू जाते हैं तो बहुत कम किराए में हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं। वहीं पे हैवी और बल्की गुड्स को भी ये ट्रांसफर करने में बहुत हमारे लिए मदद करता है। नेक्स्ट जो हमें बात करना है वो हमें बात करना है रेलवे ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल्स टू द प्रोडक्शन यूनिट्स फिनिश गुड्स टू द मार्केट। अब जो रेलवे है वो हमारे फैक्ट्रीज तक रॉ मटेरियल्स को पहुंचाता है और फिर जो फिनिश गुड है उनको मार्केट तक भी पहुंचाने का काम रेलवेज के जिम्मेदारी पर होता है। रेलवे हेल्प इन रिडक्शन सफरिंग ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज का मतलब प्राकृतिक आपदा के तहत रेलवे हमारे लिए बहुत मदद करता है। और इन द लास्ट में अगर देखें रेलवे टू द रेल ट्रेवल इज अ सेफर कंफर्टेबल फॉर द फैमिलीज विद द बेबीज एंड एल्डर्स। अगर हम रेलवे से ट्रेवल करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है अगर हम अपने फैमिली के साथ ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग डिसएडवांटेज की बात करें तो जैसे पता है हमें कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हम रेलवे ट्रैक्स को कहीं पर भी नहीं बना सकते, स्पेशली इन द हिली एरियाज और फॉरेस्टेड एरियाज। फॉरेस्ट में हिली एरियाज में हम लोग इसको नहीं बना सकते। ट्रेन ट्रेवल कैन बी लॉन्ग टीडियस। अगर हम लोग लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो ट्रेन हमें थका देने वाली यात्रा कराती है क्योंकि ये बहुत टाइम लेती है। देन आफ्टर द ट्रेन रच कोल प्रोड्यूस लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन और एयर नॉइज। अब जो ट्रेन चलती है उससे नॉइज पोल्यूशन भी होता है और एयर पोल्यूशन भी होता है। ट्रेन कैन नॉट क्रॉस द ओशियंस। ट्रेन जो है वो ओशियंस को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज योर रेलवेज। जस्ट फोकस ऑन द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।